and make good sense of humor. The next quality that we need is positive attitude. And I want to give you the answer. I want all of you to please tell me what is positive attitude. Everybody. किसी को कम मत समझो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड? What is positive attitude? Yes. Good thinking, beliefs, very good. Good thinking, beliefs, very good. Very good. बहुत सुंदर. Taking problems in a positive way, of course, so very good. Two more. Positive. Very good. Positive feeling and positive emotions. Very good. Very good. Of course, very good. I'm so happy that you spoke now. Please tell me once again. Progressive feeling. Progressive feeling. Very good. Very good. Very good. Two more. Positive attitude. देखो हम बहुत सुनते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड. बाहर तो बोलता है पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, है पॉजिटिव एटीट्यूड. Now what is positive attitude? Yeah. I can do it. I can do it. Of course, I can do it. Positive attitude. I can do it. I can do it. Yes, of course. Two more. Yeah. Just keep working. Things will happen. Of course. So very beautiful. Yeah. Glass आधा भरा हुआ है. Please join your hands and all give them all a big round of applause. Well, let me tell you what is positive attitude. You know, some people, unfortunately, have the problem of stammering. You know stammering? Right? When I give you this example, I don't mean to disrespect anyone, but some people, unfortunately, have this problem. So, you know, एक बार क्या हुआ? Church gave an advertisement in newspaper. Church ने एक विज्ञापन दिया पेपर में for recruiting sales people, because church was wanting to promote sale of Bible. बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया. lot of people applied for the job. सेल्स का जॉब था और बाइबल की सेल करनी है. such a sacred job. So lot of people applied for this job. तो जब वो जो चर्च के लोग, जब मैनेजमेंट के लोग जब उसको बच्चों को इंटरव्यू कर रहे थे, कैंडिडेट्स को, तो उसमें एक कैंडिडेट ऐसा था जिसको कि स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी. तो ही वुड स्टैमर. तो इन लोगों ने सोचा कि ये सेल्स का जॉब है और सेल्स के जॉब में तो बहुत बोलना पड़ता है और ये कैंडिडेट को तो स्टैमरिंग का प्रॉब्लम. ही कैन नॉट स्पीक क्लियरली, ही कैन नॉट स्पीक कंफर्टेबली. सो इसको ये जॉब कैसे दे सकते हैं? So they decided not to give him the job. तो फिर उनको लगा कि नो ऐसा गलत होगा कि उसको जॉब ना दें. तो then they thought differently. तो उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, काम करते हैं कि उसको जॉब तो देंगे लेकिन उसको ऐसी टेरिटरी में अपॉइंट करेंगे जहां कि हमको मालूम है कि कोई बाइबल खरीदने वाला नहीं है. Right? So what we would do? We would hire him, give him the job and give him a territory where we know nobody is going to buy Bible in any case. So what will happen? उसको जॉब भी मिल जाएगा, at the same time हमको बिजनेस का लॉस भी नहीं होगा. So the man was appointed. He was given the appointment letter. He went to the territory. साल खत्म हुआ और जब साल खत्म हुआ वो लोग स्टॉक ले रहे थे. तो जब वो स्टॉक ले रहे थे तो उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा बाइबल जिस टेरिटरी में बिकी थी वो कौन सी टेरिटरी थी? जिस पर इस कैंडिडेट को अपॉइंट किया. They were shocked. They were amazed because they never expected that any Bible would be sold in this territory, and the maximum number of Bibles were sold in this territory. तो उन्होंने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और यहाँ उसको अवार्ड दिया गया. He came on the stage, they gave him the award, and they asked him, "Sir, how did you make it happen?" And the man said, "It's very simple. Whenever I will see someone, I will go to him and I will ask him, excuse me, I can read this Bible for you, or you can buy it." And I'm sure you understand what will happen then. So everybody will buy. So what is positive attitude? Positive attitude is converting your weaknesses into is your positive attitude.
So remember, all of us, without any exception, will have some weakness. What we need to do, we need to think as to how to convert this weakness into strength, and that is positive attitude. See why I'm telling you this. Some of us come from interiors of Maharashtra. Some of us come from Marathi speaking background, और right? तो हम जब आते हैं शहर में तो हम सोचते हैं कि अरे बाप रे, पूना इतना बड़ा शहर, मैं कहाँ से आया, यवतमाल से, मेरा मीडियम क्या मराठी मीडियम, और यहाँ तो सब इंग्लिश मीडियम, सब भारी लोग आए थे. त्याचं समर्पण काही नाही, आपल्याला काही येत नाही, आपला काही होणार नाही. Now see, this attitude is negative attitude. This attitude is negative attitude. Why I'm telling you this? आप लोगों को जानकारी के बता दूं कि मेरा भी ग्रेजुएशन, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ. I come from a rural background. I'm proud for this fact that I come from an agriculturist family. तो मेरा खानदानी, मेरे जो फैमिली का जो काम था वो एग्रीकल्चर था. मैं गांव से आया, ग्रेजुएशन तक मैं हिंदी मीडियम में था. टिल ग्रेजुएशन आई वाज इन हिंदी मीडियम. और जब मैं बीकॉम कर रहा था तो मैंने सोचा कि क्या करूं मैं करियर के लिए. मेरे सामने दो ऑप्शन थे. पहला ऑप्शन कि मैं सीए करूं, और सीए करने का मतलब था कि 4 साल. सीए का मतलब मालूम है? सीए का मतलब क्या होता है? सीए का मतलब होता है कम अगेन. तो मैंने सोचा कि सीए करने में अगर समझो एक बार में पास होते गए तो 4 साल, उसके बाद प्रैक्टिस करो 3 साल, यानी कि पूरे कितने हो गए 7 साल. 7 साल तक अपने माता पिता के खर्चे पे चलना कोई बराबर नहीं. तो फिर क्या सोचा, बोले एमबीए करते. एमबीए क्यों? क्योंकि 2 साल का कोर्स, एक बार जॉब एमबीए हुए तो नौकरी मिलेगी, तो ठीक है. तो करिए. तो मैं हिंदी मीडियम से था, एमबीए की तैयारी करनी शुरू करी, बुक्स वगैरह लिए और इंग्लिश बोलने की भी प्रैक्टिस करनी शुरू करी. खुद से बात करता था, रिकॉर्ड करता था अपनी आवाज, फिर उसको सुनता था. टाइम्स ऑफ इंडिया लेके पढ़ता था. समझ में कुछ आता नहीं था लेकिन पढ़ता था. भगवान की कृपा से एडमिशन हुआ. जब एडमिशन हुआ तो ऑब्वियसली जो बाकी के जो 59 बच्चे थे क्लास में, वो सब इंग्लिश मीडियम के और मैं खाली अकेला हिंदी मीडियम से. तो उनकी इंग्लिश में और मेरी इंग्लिश में फर्क था, पक्की बात है. तो उस दिन डिसाइड किया कि एक दिन दुनिया का बड़ा ट्रेनर बन के दिखाऊंगा और इंग्लिश में लोगों को जाके ट्रेनिंग दूंगा. और आज 25 कंट्रीज में ट्रेनिंग प्रोग्राम दे चुका हूं. 60 कंट्रीज के लोग मेरे प्रोग्राम्स को अटेंड कर चुके हैं. तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड. कभी भी अपने आप को कम मान के मत चलो, क्योंकि आपका पोटेंशियल ह्यूज है. अगर आपको लगता है कि कोई वीकनेस है आप में, कन्वर्ट दैट इनटू स्ट्रेंथ एंड दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड. नहीं तो क्या होता है कि लोगों का थिंकिंग कैसी होती है. अब एक और एग्जांपल देता हूं यहाँ पर. लोगों की नेगेटिव थिंकिंग कैसी होती है. तो देखो, एक फैमिली थी 4 लोगों की, और उस फैमिली में माँ थी, पिताजी थे, बेटा था, बेटी थी, 4 लोग थे. एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन वेल. दुर्भाग्य से एक दिन पिताजी का देहावसान हो गया. तो पिताजी का देहावसान हुआ तो जो बेटा था, जो यंग बच्चा था घर का, वो डिप्रेशन में चला गया. अब वो डिप्रेशन में चला गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, डिप्रेशन से बाहर आने को तैयार नहीं. तो उसकी माँ समझाती उसको कि बेटा, पिताजी को बोले 3 महीने हो गए, जो होना था परमेश्वर की मर्जी, तू आगे बढ़, हिम्मत कर, दुकान पे जाके बैठना शुरू कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा. बेटा बोलता है नहीं माँ,
अपना कुछ ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले पिताजी थे, आप थी, बहन थी, मैं था, 4 लोग थे, सब कुछ अच्छा था। पिताजी चले गए, आप रह गई, बहन रह गई, मैं रह गया, 3 लोग रह गए, 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा, अपना कुछ नहीं हो सकता। तो माँ बोलती बेटा तू ऐसा क्यों सोचता है? ठीक है आज 3 है पर कल तो तेरी शादी होगी, शादी होगी, वो घर में आएगी, 4 हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत कर, आगे बढ़, दुकान पर जाके बैठना शुरू कर। तो बेटा बोलता है माँ वो तो बात सही है कि मेरी शादी होगी तो बहू आएगी, पर बहन का क्या है? कल बहन की शादी होगी, अपने घर चली जाएगी, आप रह जाओगी, मैं रह जाऊंगा, बहू रह जाएगी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो माँ कैसे हिम्मत आए? तो मुझे बेटा ठीक है कल तो बहन की शादी होगी, अपने घर चली जाएगी, पर तेरी शादी हुई, तेरे बच्चे होंगे, 4 हो जाएंगे, तू हो जाएगा, बच्चा 4 हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत कर आगे बढ़। बेटा बता माँ वो तो ठीक है पर आपका क्या भरोसा? तो सारा खेल माइंड। तो पक्का कर लो कि मैं मेरी किसी भी वीकनेस को अपने ऊपर हावी होने नहीं दूंगा, बल्कि मैं मेरी वीकनेस के ऊपर चढ़ के बैठूंगा और एक विनर बन के दिखाऊंगा। देखो मैं किसी को प्रमोट करने के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, पर नरेंद्र मोदी कितना बड़ा एग्जाम्पल है। चाय की दुकान, कैन यू थिंक ऑफ, पूरी दुनिया आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को अपना आइडल मान के चलती है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना। तो आप सोचिए उस आदमी के सामने क्या क्या प्रॉब्लम नहीं थे, वो सारे प्रॉब्लम्स को पूरा करके वहां तक पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि उसके पास में एक विजन था, उसके पास में एक डिटर्मिनेशन थी, उसके पास में एक देश की सेवा करने की इच्छा थी। तो हमको क्या करना है? व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड? पॉजिटिव एटीट्यूड का सिंपल सा मतलब है खुद खुश रहो और लोगों को खुश करो। दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। व्हाट इज नेगेटिव एटीट्यूड? खुद दुखी रहो और दूसरों को दुखी करो। एंड दैट्स योर। फॉरगेट द पास्ट। अब ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, पर दोबारा से बता दूं। फॉरगेट द पास्ट। जो हो गया सो हो गया। Whatever it is done is done. You cannot do it. क्यों कह रहा हूँ मैं ये चीज? क्योंकि हम में से कई बार लोग हम सोचते हैं, हमारी थिंकिंग ऐसी होती है, अरे यार क्या है कि मेरा बैकग्राउंड काम का है, मेरे माता पिता किसान, मेरी माँ को तो पढ़ना भी आता नहीं और मेरे पास पैसा भी नहीं, मेरा तो कुछ बैकग्राउंड भी नहीं है। तो ये जो पास्ट है वो उसको भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। बिकॉज डोंट क्लिंग टू द पास्ट। अगर आपका पास्ट अच्छा नहीं है तो आपको उसको पकड़ के बैठने की और भी ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों? आपको किस चीज को पकड़ना चाहिए? जो कि चीज अच्छी हो। तो फॉरगेट द पास्ट। और याद रखो, क्यों कहता हूं मैं ये? मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि रिमेंबर, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। फॉरगेट द पास्ट। अब बचपन से लेके अब तक हमारे साथ हो सकता है कि कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं हुई हो, पॉसिबल, क्योंकि अब भगवान नहीं है और भगवान ही बचे। तो हमको क्या करना है कि जो गुजर गया उसको भूल जाएं। क्यों भूल जाएं? क्योंकि whatever happens for good. Let me tell you one more story. I'm sure कुछ लोगों को शायद मालूम होगा। तो एक बार क्या हुआ कि एक राजा और एक मंत्री शिकार करने के लिए जंगल में गए, और जब वो शिकार करने के जंगल में गए तो उन्होंने एक लेपार्ड को देखा, और लेपार्ड को देखा तो राजा मजबूत था, राजा घोड़े से उतरा और उसने लेपार्ड के ऊपर हमला बोल दिया। राजा मजबूत था, लेपार्ड के साथ में जो जानवर था उसके साथ में झगड़ा हुआ, और उस झगड़े में राजा ने वो लेपार्ड को मार दिया। और वो अपने कपड़े झाड़ के उठा और मंत्री को बोला कि देखो यार, मैंने वो लेपार्ड को तो मार दिया पर मेरी उंगली कट गई।
तो मंत्री बोला महाराज जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा को गुस्सा आया, बोले व्हाट नॉनसेंस आर यू सेइंग, यहाँ मेरी उंगली कट गई और तुम बोलते हो कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा को गुस्सा आया और राजा ने मंत्री को उठाया और पास में कुआं था उसमें फेंक दिया और चल दिया। तो जैसे ही आगे गया तो सामने से कुछ कबीले आ रहे थे और जैसे ही उन्होंने राजा को देखा वो सब खुशी से नाचने लगे। राजा भी खुश हो गए, वो लगता है अपनी प्रजा के लोग हैं, उन्होंने मुझे पहचान लिया है इसलिए मुझे देख के खुश हो रहे हैं। तो राजा भी खुश होने लगे और वो कबीले लोग दौड़ के भाग के आए और उन्होंने राजा को पकड़ लिया और बांध दिया और पकड़ के ले गए। क्यों? क्योंकि वो जो दिन था वो उनकी प्रथा के हिसाब से नर बलि का दिन था। और वो क्यों खुश हुए? क्योंकि सुबह से ढूंढ रहे थे, कोई मिला नहीं। और जैसे ही राजा ने उसको पकड़ के सरदार के सामने हाजिर किया, सरदार भी खुश हुआ, वेरी गुड, लगा लो। सर राजा की मुट्ठी उसके ऊपर और ऊपर से जैसे वो तलवार बांधे के नीचे लाने लगा, वो जो कबीलों का सरदार बोला ठहरो, तुम इसको नहीं मार सकते। तो सारे लोग पहुंचे थे, बोले महाराज सरदार ये क्या प्रॉब्लम है, इतनी मुश्किल से आदमी मिला और बोले आप उसको नहीं मार सकते हो। बोले हाँ उसको नहीं मार सकते हो। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले देखो महाराज इसकी उंगली कटी है और अपनी प्रथा के हिसाब से नरबली किसकी दी जाती है जो कि पूरा कंप्लीट हो, इसलिए जो आदमी की उंगली कटी है इसलिए इसकी बलि नहीं दे सकते। तो उसने छोड़ दिया। अब राजा को बत्ती चमकी, बोले हाँ यार मंत्री सही बोलता था, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। बोले अपनी उंगली कटी थी इसलिए बच गया अपन, नहीं तो आज गर्द। राजा भगा भगा आया, कुएं में उतरा, मंत्री को निकाला, उसके पैर पकड़े, बोले मंत्री जी मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। बोले महाराज जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा बोला क्या बेवकूफ जैसी बातें करता है, मैंने तुझे कुएं में फेंका अच्छे के लिए फेंका? बोले हाँ महाराज। बोले आपकी तो कटी थी, मेरी तो forget the past, जो हो गया सो हो गया। आगे बढ़ो, मजबूत करो, पक्का करो कि मुझे तो इस मुकाम पे पहुंचना ही है। क्योंकि देखो आपका पोटेंशियल यूज है, मत वेस्ट करो इसको। ये भगवान ने 4 रिसोर्सेज दिए, ये शरीर, ये श्वास, ये दिमाग, ये 24 घंटे पूरा इस्तेमाल करो। बी ए गिवर। देखो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, गिवर एंड टेकर। गिवर एंड टेकर। And remember, the taker eats well and giver sleeps well. Be a giver. ये पूरा अस्तित्व एक ही प्रिंसिपल पर चालू है, and that principle is of giving. सूरज हमको रोशनी देता है, बादल हमको पानी देते हैं, पेड़ हमको छाया देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, पत्ते देते हैं, नदी हमको पानी देती है, जमीन हमको क्या क्या नहीं देती, चंद्रमा हमको रोशनी देता है, तारे हमको रोशनी देते हैं, आकाश हमको, दुनिया में जितना सब कुछ है इज ऑल ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग। और याद रखिए कभी ऐसा होता नहीं है कि महीने के एंड में सूर्य महाराज से बिल आता है कि भैया इतनी पावर कंज्यूम करिए, इतने महीने में अकाउंट जमा करा देना। And he does it without any expectation, yes or no? Yes. So if you want to be happy, if you want to be a leader, be a giver. तो जब प्रार्थना करो ना परमेश्वर से, तो परमेश्वर से ये प्रार्थना मत करो कि मुझे MBA बना दे और मेरी नौकरी लगा दे। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे इतना मजबूत कर, इतना मुझे सामर्थ्यवान बना कि मैं खुद का कल्याण करूं और दूसरों के कल्याण में मददगार बनूं। अगर मांगना ही है तो बड़ा मांगो। Be a giver. Be a giver. Just decide in your mind that I want to be a giver. Mahatma Gandhi was a giver. Mandela was a giver. Mother Teresa was a giver. Swami Vivekananda was a giver. Ratan Tata is a giver. So everybody who is a leader is a giver. And they could reach to that point because in their heart they had only one thing, that I want to be a giver. So be a giver. Be determined. Be determined. Don't ask what institute is giving you. Ask yourself what you are giving to the institute. And that will make huge difference in your life.
and 4 principles of sustained achievement. Sir, I am at 4:30. Can I stretch for about 10 minutes? 4 principles of sustained achievement. अब देखिए 4 सिद्धांत मैं आपको बताता हूँ और इनको आप अपनी जिंदगी में उतारें। पहला सिद्धांत है we do only those things that we remember. Yes or no? Are you with me? हम वो ही काम करते हैं जो कि हमको याद होते हैं। कभी आपने अपनी जिंदगी में ऐसा काम किया जो कि आपको याद नहीं हो? Yes or no? Of course not. कभी नहीं होगा। आप वो ही काम करें जो कि आपको याद है। आप कॉलेज में आते हैं क्योंकि आप कहीं और नहीं जाते क्योंकि आपको मालूम कि आपको कहीं और नहीं जाना है, आपको कॉलेज जाना है। So remember the first principle, you do only those things in life that you remember. इसका मतलब क्या है? इसका बहुत गहरा मतलब है। इसका गहरा मतलब ये है कि जो भी आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हो, आपको उसको याद रखना चाहिए। If you don't remember it, you will never do it. So whatever you want to become in your life, write it down on a piece of paper. Read it every day. That this is what I want to become. This is what I want to become. This is what I want to become. Why? Because we do only those things that we remember. हम अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ वो ही काम करते हैं जो कि हमको याद होते हैं। जो काम हमको याद होते नहीं, वो काम हम कभी करते नहीं। So if you want to achieve something in your life, write it down on a piece of paper. और अब देखो छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं कि कल को अगर आपको बॉम्बे जाना पड़े और समझो आप कभी बॉम्बे गए नहीं इससे पहले, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? आप कहीं से बॉम्बे का नक्शा डालोगे, ठीक है, और वो नक्शे में देखोगे कि भाई ये बांद्रा किधर है, बांद्रा में सोसाइटी किधर है, ठीक है, और यहाँ कैसे पहुंचते हैं। अब आप वो मैप को क्या करोगे? वो मैप को फाड़ के अपने पास में रखोगे, अपने बैग में रखोगे और फिर बॉम्बे जाओगे। अब बॉम्बे जाके आप क्या करोगे? आप सब होटल में ठहरे, होटल के बाहर निकले, तो वो जो नक्शा है आप होटल में के रूम में छोड़ के जाओगे कि अपने साथ में लेके जाओगे? साथ में लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर वो नक्शा आपके हाथ में नहीं है तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपको जाना है। तो ये जो भी आप लिखोगे कि मुझे ये बनना है, आपको क्या करना है? इसको अपने रूम में छोड़ना है कि अपनी जेब में रखना है? जेब में रखना है। Keep it in your pocket. Read it every day in the morning. Read it every day in the evening. That this is what I want to become. This is what I want to achieve in my life. And remember, जितना आप इस विचार को अपने दिमाग में बार बार लेके आएंगे, उतना ये दिमाग में विचार मजबूत होगा, और जितना आप पे ये विचार मजबूत होगा, पूरा अस्तित्व आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। So that's principle number 1. Principle number 2, आपको याद है, मालूम है कि दुनिया में एक इमारत है जिसका नाम है आईफल टावर। आईफल टावर 2 बार बना, कुतुब मीनार 2 बार बनी, आगरे का ताजमहल 2 बार बना, चाइना की जो वॉल है 2 बार बनी, बॉम्बे का गेटवे ऑफ इंडिया 2 बार बना, जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं और ये प्रोग्राम कर रहे हैं 2 बार बना, और जिस घर में आप रहते हैं वो घर 2 बार बना। एक बार किसी के दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपल है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बनना है या कुछ बनाना है, तो हकीकत में आने से पहले उसको आपको अपने दिमाग में बनाना होगा। प्रिंसिपल नंबर 2। प्रिंसिपल नंबर 3, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और बहुत सारी टेक्निक सीखे भी आपने कोर्स में, पर एक चीज बताता हूं मैं आपको। What you write on a paper becomes action. What you write on a paper becomes action, and what you keep in your mind gives you tension. समझे? तो जो चीज आप कागज पर लिखते हैं वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो चीज आप अपने दिमाग में रखते हैं वो आपको टेंशन देती है। That means what? That means whatever you want to do, don't keep it in your mind.
write it down on a piece of paper. Keep reading it, keep reading it, keep reading it. Keep reminding yourself कि ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है. तो वो करते करते वो काम एक दिन हो जाएगा. Otherwise you will keep it head on. Principle number 4. If you do not have a planned agenda of high value activities, अगर आपके पास में प्लान्ड एक्टिविटीज की लिस्ट नहीं है, अगर आपके पास में प्लान्ड एक्टिविटीज हाई वैल्यू एक्टिविटीज की लिस्ट नहीं है, तो आपका समय अनप्लान्ड जीरो वैल्यू एक्टिविटीज में जाएगा. यस और नो? मींस व्हाट कि 24 घंटे आपका इंतजार करने वाले नहीं है. ये 24 घंटे कहीं ना कहीं निकल जाएंगे. तो अगर आपने इनको प्लान्ड एक्टिविटीज में नहीं लगाया, तो ये 24 घंटे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अनप्लान्ड एक्टिविटीज में जाएंगे. सो ऑलवेज हैव अ लिस्ट ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज. लिव लाइफ विद अ बिग पर्पस. Live life with a big purpose. और एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है. एक बार once in a boat, a learned man was going in a boat, sailing in a boat. तो एक लर्नेड आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा, और एक अनपढ़ नाविक था. तो बोट दोनों जा रहे थे. बीच में अचानक से जो लर्नेड आदमी था, उसने एक सवाल पूछा ओल्ड मैन से, नाविक से, बोटमैन से. हे ओल्ड मैन, यू नो व्हाट इज मीटियोरोलॉजी? द ओल्ड मैन did not know. He said, no, I'm sorry, I don't know what is meteorology. The learned man said, if you don't know what is meteorology, 25% of your life is gone. The old man looked very sad, but he kept on sailing the boat. After a while, he again asked one more question. He said, hey old man, you know what is cosmology? The old man put his hand on his cheek, thought about it, and he said, I'm sorry sir, I don't know what is cosmology. And the learned man said, old man, 50% of your life is gone. The old man looked very sad, but he kept on sailing the boat. After a while, the learned man again asked him one more question. Hey old man, you know what is meteorology? What is geology? The old man again scratched his head and he said, no sir, I don't know what is geology. And the learned man said, then your 75% life is gone. The old man looked very sad, but he kept on sailing the boat. They kept on sailing the boat. After a while, the old man asked the learned man, excuse me sir, do you know what is swimology? And the learned man said, no, I don't know what is swimology. And the old man said, sir, that you are 100% right. Because there is a storm in the sea, the boat is going to sink. If you don't know what is swimology, you are 100% right. So live life with a big purpose. Big purpose. And finally, friends, of course, spread this among all. So tell this to everyone. Share this to everyone. So before we close this session, since I have spent about 1.5 hours with you, I have given you a lot of thoughts, and I don't want to go empty-handed from this program. So I want to take something from you also. Are you prepared to give me? Can't hear you. Can't hear you. Very good. तो अभी सब लोग खड़े हो गए, तो स्टूडेंट्स सब सारे खड़े हो गए, स्टूडेंट्स सारे खड़े हो गए. और अपने राइट हैंड को आगे करें और मेरे साथ में बोले.
मेरे साथ में बोले। जब मैं मेरा नाम लूंगा तो आप अपना अपना नाम लें। मैं प्रमोद जैन संकल्प लेता हूँ कि परमपिता परमेश्वर और मेरे माता